Welcome to ANP tutorial. Please like, share and subscribe. Hello everyone. Today name reaction is Wolff-Kishner reaction. It is a reaction reaction. Reaction reaction आपको मालूम है कार्बोनिल ग्रुप्स का रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन रिमूव कर जाएगी और इस डबल बॉन्ड के प्लेस पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो वुल्फ-किश्नर रिएक्शन में सबसे पहले ये रिएक्शन होती है बेस की प्रेजेंस में, राइट? बेस होना चाहिए। अब बेस हमारा क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम? हाइड्रोजीन NH2 NH2 कोई भी, और जो रिएक्टेंट है वो क्या है हमारा? सपोज ये हमने क्या लिया है? कीटोन लिया है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये हाइड्रोजीन है, बेस है। जो प्रोडक्ट बनेगा इस डबल बॉन्ड पर, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएंगे लाइक दिस एक ये हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। तो व्हाट विल हैपन? कीटोन और एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, चेंजेस इनटू द एल्केन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। तो कीटो ग्रुप गेट reduced in the presence of hydrazine, it gives alkane. So Wolff-Kishner reaction tells us in which carbonyl group get reduced in the presence of hydrazine, it gives alkane. It gives alkane. This double bond, carbon double bond oxygen, this oxygen remove हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे by removing of नाइट्रोजन। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन दैट मीन्स जो आपका रिएक्टेंट है, कीटोन है, डबल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजीन के साथ और C डबल बॉन्ड NH2। तो दिस इज द हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन इट इज द कजन, यू कैन से कजन ऑफ इमाइन, कार्बन डबल बॉन्ड N, राइट? देन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, 2 स्टेप्स में करेगा। एक बार प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर उस पर प्रोटॉन अटैक करेगा और सब्सिक्वेंटली नाइट्रोजन का रिमूवल होगा। हेयर इज द mechanism by which you can understand properly. Hydrazone, which is formed in the first step when ketone reacts with hydrazine, abstract the proton, hydrazone is formed. So we have taken hydrazone. Medium is basic, OH negative ion. Base abstract the proton attached to the nitrogen. Then water molecule का removal होगा. Then what will formed? Anion of hydrazone is formed. So anion NH2 पे से एक प्रोटॉन निकला है सिर्फ, so it leaves their electrons on the nitrogen atom and these electrons move towards the bond, they form the bond and these pi electrons shifted to the carbon. क्यों हो रहा है ये? Because resonance, due to the reason of stability. When delocalization of pi electrons, then these lone pair of electrons shifted to the here and form the double bond like this, and these pi electrons shift to the delocalize or shift onto the carbon atom and form the negatively charged, right? Then they stabilize itself through the resonance, right? Next, proton, the medium is base, in proton is there, then proton is shifted to the carbon atom, or you can say carbon gets protonated. this proton की internal shifting होगी, सिर्फ proton, मैं क्या बोल रही हूँ, H प्लस आपके यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे उस कार्बन एटम पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है, राइट? लाइक दिस। देन these electrons, क्योंकि प्रोटॉन गए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं यहाँ पर, these electrons again form the one bond between the नाइट्रोजन, और आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये इजीली नाइट्रोजन आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यहाँ पर कार्बन आयन नेगेटिवली चार्ज बना देंगे। देन नेगेटिव चार्ज बन गया है, एक हमें क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। तो 1 प्रोटॉन अटैच हो गया है, कार्बन, एक हाइड्रोजन बन गया है। देन वी नीड 1 मोर प्रोटॉन, हमारा सॉल्वेंट है H2O है, H2O से आप जानते हैं H प्लस और OH नेगेटिव आयन्स आते हैं। देन दीज H प्लस आयन अगेन बॉन्डेड टू दी दिस कार्बन आयन, देन
our desired product alkane is formed. What is happening in this reaction overall? Hydrazone is formed by the reaction of ketone and hydrazine on react the OH negative ion react or you can say abstract the proton abstract हुआ, lone pair of electron छोड़ा, these lone pair of electron form the bond in between nitrogen. Due to the reason of stability, these pi electrons shifted to the carbon atom. Then internal shifting हुई और carbon आपका proton से attach हो गया. Then subsequently N2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूव हो रहा है, अगेन अनायन बना और फिर से एल्केन बन गया. तो आप एट ए ग्लांस यू कैन सी हाइड्रोजन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, लोन पेयर आए, डबल बॉन्ड बना. रीज़न क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो सब्सिक्वेंटली ये पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो गए, प्रोटॉन की इंटरनल शिफ्टिंग हुई, नाइट्रोजन का रिमूवल हुआ. नाइट्रोजन का रिमूवल अगर यहाँ से हो रहा है तो इस पर क्या आएगा, यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कार्बन पे आ जाएंगे और फिर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एल्केन बन जाएगा. दिस इज होल अबाउट वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन. थैंक यू.